السلام علیکم، میں شرف اعظم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل شرف اعظم آفیشیل میں۔ ساتھیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں بہار ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام 2025 کے لیے اردو فاؤنڈیشن بیچ کا پارٹ 3 دیکھنے والے ہیں، جس میں ہم لوگ اردو قواعد کو یعنی کہ اردو ویاکرن کو بالکل شروعات سے پڑھنے والے ہیں۔ یہ ویڈیو ان سبھی کے لیے ہے جو اس مرتبہ بہار ڈی ایل ایڈ یا پھر مانو بی ایڈ یا پھر ڈی ایل ایڈ یا پھر اسٹیٹ یا پھر کسی ایسے ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں جس میں آپ کو اردو قواعد سے آپ کے ایگزام میں کوشچن آنے والے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور بنے رہیے گا، اور اس ٹاپک کو جو آج ہم پڑھانے والے ہیں یہاں سے آپ کے ایگزام میں یعنی کہ ڈی ایل ایڈ میں 2 سے 3 نمبر کا کوشچن آپ کو دیکھنے کو ملے گا، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور بنے رہیے گا۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو پارٹ 2 میں جو آپ کو پڑھائے تھے وہ آپ کو کلمہ کے بارے میں کلمہ کے بارے میں یعنی کلمہ کا دوسرا نام ہے آپ کو موضوع۔ اس کے جو قسمیں ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور اسم کے بارے میں ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ اسم جو ہے ان کے معنی کے اعتبار سے اور پھر بناوٹ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے جو ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ ان کی 2 قسمیں ہیں، اور بناوٹ کے اعتبار سے یعنی بناوٹ یا پھر اشتقاق کے اعتبار سے جو ان کی 3 قسمیں ہیں۔ جامد، مصدر، مشتق، جامد، مصدر اور مشتق۔ اور پھر ہم نے آپ کو مصدر کے بارے میں بتائے تھے کہ مصدر جو ہے ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے آپ کو اسم نکرہ، اور ایک ہے پھر آپ کو اسم معرفہ، ایک ہے اسم معرفہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو جانیں گے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ہم نے آپ کو اسم نکرہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اسم نکرہ یعنی اسی کو ہم اسم خاص کہتے ہیں، اور اسی کو ہم انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اسم عام جس سے کوئی خاص شخص یا چیز نہ سمجھا جائے، یعنی کوئی خاص چیز نہیں بلکہ وہ عام چیز ہو، جیسے کہ ندی، پہاڑ، آدمی وغیرہ۔ ندی مینس کوئی بھی ندی، اگر گنگا بولا جائے تو یہ کوئی خاص ندی کا نام ہے، تو یہ گنگا جو ہے یہ آپ کو اس میں خاص نہیں بلکہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ اس میں نکرہ جو ہے ان کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں نکرہ جو ہے ان کی جو قسمیں کی اگر بات کریں تو ان کی 5 قسمیں، ایک ہے آپ کو مکبر، مصغر، اعلیٰ، صوت اور ظرف۔ اس میں مکبر اسے کہتے ہیں جس سے بڑا چیز سمجھا جائے، اس میں مصغر اسے کہتے ہیں جس سے چھوٹا چیز سمجھا جائے، اور اس میں اعلیٰ جس میں اوزار اور پھر ہتھیار کی بات کی جائے، اور اس میں صوت جس میں آواز، صوت مینس ہوتی ہے آواز، اور اس میں ظرف جو ہوتا ہے جس میں زمان اور مکان دونوں کی باتیں کی جائے، اسی کو ہم اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا اور ڈیٹیل سے کہ اس میں مکبر جس سے کسی چیز کی بڑائی یا پھر بڑا ہونے کا پتہ چلے، جیسے کہ بات سے بتنگر، بات سے بتنگر، پھر کار سے شاہکار۔ یہ آپ کو ایگزام میں دے دیا جائے گا کہ شاہکار جو ہے وہ کیا ہے، مکبر ہے، مصغر ہے، پھر اعلیٰ، یہ صوت ہے، کیا ہے، تو یہ جو ہے شاہکار جو ہو جائے گا یہ آپ کو مکبر ہو جائیں گے۔ چلیے اب سمجھتے ہیں مصغر کو۔ اب ہم سمجھتے ہیں مصغر کو کہ جس سے کسی چیز کی چھوٹائی ظاہر ہو، جس سے کیا ہو، جس سے کسی چیز کی چھوٹائی ہو، جیسے کہ دیگ سے دیگچی، کیا ہو جائے گا، دیگ سے دیگچی، یا پھر باغ سے باغیچہ، تو یہ باغیچہ جو ہے نا یہ آپ کو اس میں مصغر ہے، کیا ہے، یہ آپ کو مصغر ہے۔ اب سمجھتے ہیں اس میں اعلیٰ کے بارے میں۔ اس میں اعلیٰ جس سے کسی آلہ یا اوزار یا پھر ہتھیار کا نام ہو، جیسے کہ چاقو، چاقو جو ہے یہ بھی ایک ہتھیار ہے، تلوار یہ بھی ایک ہتھیار ہے، بھالا، اور قلم کا جو پین ہوتا ہے، نوک جو ہوتا ہے، اس سے بھی آدمی کا جو ہے مطلب بلڈ وغیرہ نکل جاتا ہے، تو یہ بھی جو قلم جو ہے یہ بھی ایک اس میں اعلیٰ میں آتا ہے، اور یہ آپ کو کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے یہ قلم جو ہے وہ کیا ہے، تو یہ قلم جو ہے آپ کو اس میں اعلیٰ کی مثالیں ہے۔ چلیے اب سمجھتے ہیں اعلیٰ جو ہے جس کے ذریعہ کسی کام کو انجام دیا جائے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو قلم کے بارے میں، تو قلم سے ہم کیا کر رہے ہیں، کسی نہ کسی چیز کا ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا جو ہے اس کے ذریعے ہم کسی نہ کسی کام کو انجام دے رہے ہیں۔ جیسے جھاڑو سے ہم کیا کر رہے ہیں، صفائی کا کام کر رہے ہیں، قلم سے لکھائی کا کام کر رہے تھے۔ جھاڑو بھی اور قلم بھی یہ جو ہے آپ کو کس کی مثال ہو جائے گی، اس میں اعلیٰ کی مثالیں ہو جائیں گے۔ چلیے اب سمجھتے ہیں اس میں صوت کے بارے میں۔ اس میں صوت جس سے کسی خاص چیز یا جاندار کی آواز کیا ہو، آواز معلوم ہو، جیسے کہ میاؤ میاؤ، جیسا کہ کیا ہو جائے گا، میاؤ میاؤ، ٹپ ٹپ، شپ یا شپ شپ،
टिप टिप ये पानी बरसता है, म्याऊं म्याऊं आप समझते हैं कि बिल्ली की आवाज़ है, और शप शप ये जो है आपको क्या है, ये जो है आपको तलवार की आवाज़ है। तो ये जो भी आवाज़ें हो, यानी जितनी भी आवाज़ें आपको सुनाई देती है, ये सारी आवाज़ें इसमें सौत की हो जाएगी। जी अब समझते हैं हम इसमें ज़र्फ़ के बारे में। अब समझते हैं इसमें ज़र्फ़ के बारे में, जो किसी जगह या वक्त को ज़ाहिर करे, जो किसी जगह या फिर वक्त को ज़ाहिर करे, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे कि शाम जो है क्या, ये वक्त को बता रहा है, रात जो है भी कोई वक्त को बता रहा है, दिन फिर कल या फिर ईदगाह, ये कोई ना कोई जगह को बता रहा है, और मैदान ये भी कोई ना कोई जगह को बता रहा है। और ये जो होते हैं इनकी दो किस्में होती हैं। कितने इनकी दो किस्में होते हैं, एक होता है ज़र्फ़ मकान, एक होता है आपको ज़र्फ़ ज़मान। यानी ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान हो जाएंगे। अब समझते हैं ज़र्फ़ मकान किसे कहते हैं। ज़र्फ़ मकान जिससे किसी जगह का पता चले, जैसे कि ईदगाह, स्कूल, मैदान, कब्रिस्तान, फिर हो जाएगा मस्जिद या फिर घर। तो ये सब जो भी मिसालें हैं ये आपको इसमें मकान जिसमें आप रहते हैं, तो इसमें मकान की मिसालें हो जाएगी। इसमें ज़मान जिससे वक्त या ज़माना मालूम हो, जिससे क्या हो, वक्त या फिर जिससे वक्त या ज़माना मालूम हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें ज़मान कहते हैं। जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर, दिन, रात, साल, महीना, ज़माना। तो ये जो हो जाएंगे ये किसकी मिसालें हो जाएंगी, ये इसमें ज़र्फ़ की मिसालें हो जाएंगी। तो आपने समझ गया कि इसमें नकरा जो है, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, इसमें नकरा की जो है इनकी 5 किस्में हैं। जी इसमें नकरा की 5 किस्में, मुकब्बर, मुसग़्ग़र, आला, सौत और ज़र्फ़। इनको आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं इसमें मारफा के बारे में, और यहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए डायरेक्ट ये कभी पिछले बार जो पूछा गया था, हम आपको PYQ भी आपको लाएंगे, और PYQ वगैरह भी हमारे पास है, जिनका जो भी आपको बहुत जल्द जो है आपके सामने उनका क्वेश्चन वगैरह करवाने वाले हैं। तो देखिए इसमें डायरेक्ट ये आपको पूछा गया एग्जाम में कि इसमें मारफा, जी इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास जो इनकी कितनी किस्में, इनकी 7 किस्में हैं। कितनी किस्में, 7 किस्में हैं। आलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, मऊद, मुनादा। चलिए इसको हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें अलम जो ख़ास जगह या चीज़ के नाम को बताए, जो ख़ास जगह या चीज़ के नाम को बताए, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम अलम कहेंगे। यानी जो आपने इसमें नकरा की मिसाल, जो इसमें आपने मारफा की मिसालें समझी है, वही सेम इसमें आलम की भी मिसालें हैं। जैसे कि हामिद, गंगा, पटना, ये इसमें अलम हो जाएंगे। ज़मीर समझते हैं, जो इसम के जगह पर आए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ज़मीर कहते हैं। इससे आप इंग्लिश में समझ सकते हैं कि जो इसम के जगह पर, यानी कि जो नाउन की जगह पर आता है, उसी को ज़मीर, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीर मीन्स प्रोनाउन। जी जैसे कि मैं, हम, आप, वो, ये है। जी तो ये सब जो हो जाएंगे, ये सब इसमें ज़मीर की मिसालें हो जाएंगी, यानी कि जी प्रोनाउन की मिसालें हो जाएंगी। अब समझते हैं इशारा जिसके ज़रिए इशारा किया जाए। जी जिसके ज़रिए इशारा किया जाए, जैसे कि हम ये, वो, जिस, डैट यूज़ करते हैं ना। जी तो ये जो है इसमें इशारा हो जाएंगे। और इसमें इशारा जो होता है ये 2 होते हैं। एक होता है आपको इसमें इशारा, एक होता है मुशारुन इलैहि। जी इसमें इशारा, एक होता है आपको मुशारुन इलैहि। जैसे कि वो गाड़ी, जिसके ज़रिए हम इशारा करते हैं, जी जिसके ज़रिए हम इशारा करते हैं उसको हम इसमें इशारा कहते हैं, और जिसके तरफ हम इशारा करते हैं उसको हम मुशारुन इलैहि करते हैं। देखिए वह के साथ जो हम उसको इशारा कर रहे हैं तो वो इसमें इशारा हो जाएंगे, और गाड़ी की तरफ जो इशारा कर रहे हैं तो ये मुशारुन इलैहि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपको, मुशारुन इलैहि हो जाएंगे। अब मुशारुन इलैहि के बारे में जानते हैं। मुशारुन इलैहि जो होते हैं वो भी, इसमें इशारा जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। इसमें इशारा जो होता है वो कितना होता है, वो भी 2 होता है। एक होता है इसमें बाइद, एक होता है इसमें करीब। वो जो होता है वो दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो होता है ये करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझते हैं मौसूल के बारे में। किसको, मौसूल के बारे में। जो एक वस्फी यहाँ पे जुमला होना चाहिए, जुमला के बगैर अपने माने न बताए। जैसे कि जिस शख्स, जो शख्स। जी देखिए यहाँ पे जिस शख्स, जो शख्स। देखिए जो बोएंगे वही काटेंगे। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें 3 चीज़ है। एक है आपको इसमें मौसूल, एक है आपको सिला, एक है जवाब सिला। एक है आपको सिला और एक है आपको जवाब सिला। हमने आपको बताए थे, एक होता है मौसूफ और एक होता है आपको सिफत। एक है आपको सिफत और एक है आपको मौसूल। जी हमने आपको बताए थे जी कल के वीडियो में। तो समझते हैं यहाँ पे इसमें मौसूल। देखिए यहाँ पे जो है ये आपको हो जाएंगे इसमें मौसूल हो जाएंगे, और बोएंगे तो ये आपको सिला हो जाएंगे। अब इसके जवाब में जो हम ये अगला जुमला बोल रहे हैं वही काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको जवाब सिला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यही आपको जो है जवाब सिला हो जाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं आपको मुज़ाफ के बारे में। क्या समझते हैं मुज़ाफ के बारे में।
देखिए मुज़ाफ जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो, जिसका लगाव किसके साथ हो, कोई दूसरे इसम के साथ हो। जैसे कि अहमद का लड़का, अहमद का लड़का, यहाँ बीच में जो आ रहा है ना जी, ये बीच में जो आ रहा है जी, ये बीच में जो आ रहा है एक वर्ड, उसी से हम क्या कर रहे हैं, दोनों जुमला को हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अहमद जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको, मुज़ाफ अलैह हो जाएगा, और लड़का जो है आपको मुज़ाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, मुज़ाफ हो जाएगा, और बीच में का की जो आ रहा है ये आपको इजाफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, ये इजाफत हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो बीच में जो एक वर्ड आ रहा है, यही जो है ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जैसे कि अहमद लड़का, अहमद लड़का, अगर का को हटा देंगे क्या हो जाएगा, अहमद लड़का। तो अहमद लड़का तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अहमद का लड़का, तो ये का जो आ रहा है ये इसी को हम इसमें जी इसी को अलामत इजाफत कहते हैं। और ये जो होता है ये 9 होता है। जैसे का की के अरारी रे अन्नानी ने, ये कुल 9 होते हैं। और ये का की से पहले जो हर्फ होते हैं, यानी का की से पहले जो वर्ड आते हैं इसे हम मुज़ाफ अलैह कहते हैं, और का की के बाद जो आता है उसे हम मुज़ाफ कहते हैं। तो मुज़ाफ, और एक होता है आपको मुज़ाफ अलैह, एक होता है आपको इजाफत। तो एक हो गया मुज़ाफ, एक हो गया मुज़ाफ अलैह, एक हो गया आपको इजाफत। तो ये का की जो है ये आपको इजाफत हो जाएगा, और का की से पहले जो है आपके दाएं तरफ ये हो जाएगा मुज़ाफ अलैह, और बाएं तरफ जो है ये आपको मुज़ाफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम समझते हैं मऊद के बारे में। मऊद जो गुफ्तगू के करीना से और ख़ास वजह से किसी शख्स जगह को बताए, किसी खास जी जो गुफ्तगू के करीना से और ख़ास वजह से किसी शख्स जगह को बताए। जैसे कि दोस्त आया, ये जुमला से आपको समझ में नहीं आया होगा कि दोस्त आया। जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हम बात के दौरान उसको कह रहे हैं कि अरे वो मेरा दोस्त आ रहा है, दोस्त आ रहा है। तो वो समझ जाएगा कि अच्छा आप जो अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे क्या वही दोस्त के बारे में, यानी वही दोस्त आ रहा है क्या। तो ये जो आपको हो जाएगा, तो ये कोई ख़ास गुफ्तगू के करीना से समझ में आ जाएगा कि वो हमारे जो दिल के अजीज़ हैं वो आज हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो जो दिल के अजीज़ कौन हो सकता है भाई, इनके कोई मतलब कोई ख़ास आदमी, तो वो दोस्त वगैरह जो है तो वही उसी को हम कहेंगे इसमें मऊद कहेंगे। जैसे कि हम कहेंगे खलीलुल्लाह जी, कलीमुल्लाह। तो कलीमुल्लाह से मीन्स क्या होता है, कलीमुल्लाह किसको कहते हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम क्या कहते हैं, कलीमुल्लाह कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा खलीलुल्लाह। तो ये खलीलुल्लाह जो है, तो खलील किसको कहते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम जो है खलीलुल्लाह कहते हैं जी। तो खलील से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये खलीलुल्लाह जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। तो ये जो हो जाएंगे यही इसमें मऊद हो जाएंगे। अब हम समझते हैं, एक होता आपको मुनादा और एक होता आपको निदा। तो समझते हैं मुनादा, जिसको पुकारा जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उसे हम मुनादी या फिर मुनादा कहते हैं। एक होता आपको निदा, हरफे निदा। तो ये जो यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे ए लड़का, तो यहाँ पर देखिए ए जो है ना, ए, तो ये आपको हरफे निदा है, और लड़का जो है ये आपको क्या है, ये मुनादी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपने समझा कि इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, और उन सारे के बारे में हमने इसमें नकरा और इसमें मारफा के बारे में खूब अच्छी तरीक़ा से हमने आपको समझाया। अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, यदि अगर आपके कोई दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। और उर्दू की अच्छी तैयारी के लिए और मुकम्मल नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको जो है अच्छे नंबरात आए हैं, तकरीबन जो हम 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस मरतबा जो है सिलेक्शन पाए हैं। तो आप भी जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है जो पढ़ा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट वहाँ पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।